Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. I am Atul and today I am going to discuss the next physical quantity, that is velocity. Clear? Okay students, in the previous video you have learned about the numericals related to distance and displacement. After that you have done the concept of speed. Today we will do the concept of velocity. The difference between speed and velocity is the same एज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप यदि डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस का मीनिंग होता है कि आपने कितना पाथ ट्रैवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि आपने कितना पाथ ट्रैवल किया एंड किस डायरेक्शन में उस पाथ को आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। इन द सेम वे जो वेलोसिटी है, इट इज स्पीड with direction. Clear? So what is the meaning of velocity? It is the displacement covered in unit time. So we can write velocity is equal to displacement over time. Okay, now SI unit of velocity is equal to SI unit of displacement divided by SI unit of time. So SI unit, it is equal to meter per second. Now displacement is a vector quantity, velocity is a vector quantity, so it can be 0, it can be negative, can be 0 and negative. Clear? Okay students, now in the same way I have told about the speed. For moving vehicle I have denoted at that time that for moving vehicle we denote the unit in kilometer per hour. For moving vehicles we take unit kilometer per hour. Conversion I have told in the last video. Clear? Okay, now types of velocity. If you remember the types of the speed, there were 4 types: uniform, non-uniform, average and instantaneous speed. In the same way we are going to study about 4 types of velocity. First, uniform velocity. Uniform means constant. Clear? Okay, now we know that velocity is equal to displacement over time. Clear? If uniform velocity is there, it means the ratio of distance to the time should remain constant. Clear? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, तो उसके लिए जो रेशो है डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम की, वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? सेम. सो इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय इक्वल चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम. इट मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन ऑब्जेक्ट कवर्स equal displacement in equal time. Clear? Okay, second, non uniform velocity. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब हमने किया था वहाँ पर हमने क्या बोला कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. इन द सेम वे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के इक्वल है. यदि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मीनिंग क्या है? डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम
ये रेशो कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, या तो इसकी वैल्यू चेंज हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल होनी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में। क्लियर? सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, देन द वेलोसिटी विल बी वेरिएबल और वेलोसिटी विल बी नॉन यूनिफॉर्म। इफ ऑब्जेक्ट covers unequal displacements in equal time, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग है कि इन ईच स्लॉट जो वेलोसिटी की वैल्यू वो क्या है, चेंज हो रही है। क्लियर? ओके। थर्ड टाइप, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो मैंने बताया, आपको बताया कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। इन द सेम वे जो एवरेज वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल time taken by the object. Clear? Now fourth, instantaneous velocity. इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसका क्या नाम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट particular instant of time. Clear? Okay students, now I will do one numerical on the basis of average velocity, because in the competition and in the exam average velocity concept is very very important, because maximum numerical will be asked on the basis of average velocity. Clear? So now look, this is a swimming pool from point A to B having length 90 meter. Clear? A girl named Usha swims across the swimming pool and she covers 180 meter in 1 minute. अच्छा, 180 मीटर कैसे किया उसने? पहले वो गई A to B देन B to A. क्लियर? पहले उषा क्या करती है, A से B स्विम्स करती है. क्लियर? एंड शी कम्स बैक अगेन फ्रॉम B to A पॉइंट. सो इन दिस वे 90 मीटर 90 मीटर शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. नाउ कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड velocity of Usha. Clear? Okay, now first of all average speed. Now देखेंगे स्टूडेंट्स, A to B 90, B to A 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 180 मीटर एंड शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट. तो टोटल टाइम टेकन बाय उषा इज 1 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड.
Now average velocity. Average velocity, you know very well that total displacement divided by total time. Total displacement A to B 90, again she comes back B to A. So initial and final positions are same because both are at point A. So displacement will be 0. So average velocity is equal to 0 upon total time कितना है 1 मिनट, तो 0 मीटर पर सेकेंड. Clear? So students, if you look at this example, average velocity can be 0 और velocity can be 0. आप यहाँ पर एक न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं. मान लो उषा ट्रैवल करती है A to B. क्लियर? अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. सी, इसी क्वेश्चन में देखें, पॉइंट A पॉइंट B 90 मीटर. उषा क्या करती है A to B ट्रैवल करती है इन 45 seconds. Clear? So calculate speed and velocity. Suppose average speed and velocity. So speed is equal to distance कितना 90, क्योंकि A से B गई है केवल कितने टाइम में 45 सेकेंड में. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्टूडेंट्स, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे एक हैबिट बना लीजिए अभी से. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के साथ यूनिट जरूर लगाया करें आप. इससे बिल्कुल क्लैरिटी आती है कि आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है. तो ये कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट अबाउट वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना है 90, टाइम 45 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड. ये जब पिछले एग्जाम्पल में देखें ए से बी बी टू ए में, यहाँ पर स्पीड 3 मीटर है, वेलोसिटी कितना है 0. लेकिन इस एग्जाम्पल में देखें स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, दोनों के दोनों सेम है. इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रैवल करे एक ही साइड में, देन स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम. क्लियर? एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन इन अलोंग वन डायरेक्शन, स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी. यदि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखो, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में. यदि स्ट्रेट लाइन मोशन तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, सेम रहता है. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस. इन द सेम वे स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी. क्लियर? स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन मोशन. अदरवाइज जो स्पीड की वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी वेलोसिटी से. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, this is all about your concept regarding velocity. Now we will come on the next topic, that is acceleration. Okay students, if I give one question to you that give the differences between speed and velocity, what will you say? Speed distance over time होता है, velocity displacement over time. Second, speed scalar है, velocity क्या है, vector quantity. Clear? Third, speed cannot be 0, cannot be negative, but velocity can be 0, can be negative. Clear? Fourth, relation क्या बनेगी यहाँ पर, स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी. इक्वल कब होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, अदरवाइज स्पीड विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, एट द लास्ट, यदि आप फिजिकल मीनिंग देखो स्पीड और वेलोसिटी का, स्पीड केवल आपको ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, बट वेलोसिटी टेल्स दैट हाउ मच फास्ट द ऑब्जेक्ट इज एंड इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग.
क्लियर। तो इसका मीनिंग हमेशा समझे, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम हमेशा उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। आपने कभी जब आप कार ड्राइव करते हो, कई बार आप कहते हो कि एक्सेलरेटर पर जो अपने पैर है वो प्रेस कीजिए। क्लियर। तो उससे होता क्या है, द स्पीड ऑफ कार गेट्स इंक्रीजेस। इफ यू अप्लाई द ब्रेक्स in the car, then the velocity or speed of the car gets decreases. Clear? अच्छा, what is the meaning of that brake and accelerator? उनका मीनिंग हम क्या समझते हैं कि एक्सेलरेटर पर हमने पैर दबाया तो स्पीड इंक्रीज हो गई, ब्रेक पर पैर दबाया तो स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर। तो इन दोनों का मीनिंग पड़ता है हमारे पास एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ये बताते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आया। वो चेंज इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। कैसे? जब आप एक्सेलरेटर पर पैर दबाते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। क्लियर। इफ यू अप्लाई द ब्रेक्स इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वेलोसिटी है कार की वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाएगी। तो एक्सेलरेशन एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव्स द रेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी। Next is acceleration. Acceleration is known as rate of change of velocity. Students, whenever I will write the rate, it means given quantity को मैं time से divide कर रहा हूँ। Clear? So symbol of acceleration is A. We will represent by a small a. So acceleration is equal to change in velocity divided by time. Clear? Change in velocity, इसका मीनिंग क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय v, देन माइनस साइन एज इट इज। इनिशियल वेलोसिटी आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय u, टाइम बाय t। सो a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द SI यूनिट, SI unit of acceleration is equal to SI unit of velocity divide by SI unit of time. वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टाइम की यूनिट सेकेंड। सो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा मीनिंग समझे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग होता क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय सेइंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? आई कैन राइट इट एज 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। क्लियर। सो इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है 1 सेकंड में। वो कैसे? सपोज पहली सेकंड में आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड,
In the next second, your speed is or velocity is 4 meter per second. In the next 1 second, let velocity is 6 meter per second. तो यहाँ पर क्लियर आपको पता लग रहा है कि एक सेकंड में, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है उसमें चेंज कितना आ रहा है, 2 to 4 2 मीटर पर सेकंड का, 4 to 6 2 मीटर पर सेकंड का. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. Clear? Okay, now students, now I will tell the meaning of pressing, accelerator and brakes. जब भी आप एक्सेलरेटर की बात करते हो, then you always talk about पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्लियर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0. तो जब भी आप एक्सेलरेटर पर प्रेस करोगे तो स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी. क्लियर? इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल velocity. Clear? It means velocity of object increases with time. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शुरू में मान लो आपकी स्पीड, कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. आपने एक्सेलरेटर को प्रेस किया तो स्पीड बढ़ जाएगी. लेट इट इज 50 किलोमीटर पर आवर. अगेन इफ यू प्रेस इट विल बिकम सपोज 60 किलोमीटर पर आवर. तो इसका मीनिंग क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जो वेलोसिटी और स्पीड है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है. तो इस सिचुएशन का मीनिंग होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो ये आपको ऑब्टेन कब होगी? बाय प्रेसिंग द एक्सेलरेटर. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड वी हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन. इसको एक और नाम देते हैं रिटार्डेशन. अच्छा, रिटार्डेशन मीन्स मोशन को रोकना. क्लियर? सिंपल. इस सिचुएशन से हमें पता लग रहा है कि इस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की? कम हो जाएगी. क्लियर? सो इफ यू प्रेस द ब्रेक्स देन व्हाट हैपन्स? यू आर डूइंग एक्सेलरेशन एज नेगेटिव. Means final velocity is less than initial velocity. That is, velocity decreases with time. Clear? Okay students, it is all about by saying to press accelerator and to apply brakes. Clear? Okay, now one numerical is for you. It is a car changes its velocity from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. कैलकुलेट एक्सेलरेशन. क्लियर? ट्राई योर सेल्फ.
इन दिस एग्जाम्पल इफ यू लुक फ्रॉम 80 यानी 80 किलोमीटर पर आवर आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई 60, इनिशियल 80 है तो फाइनल 60, और ये कितने टाइम में हुआ इन जस्ट 5 सेकेंड। सो यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, क्लियर। बट बिफोर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन सी केयरफुली, हेयर किलोमीटर पर आवर है एंड हेयर इट इज सेकेंड। मैंने आपको शुरू में कहा था, जब मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ाया, मैंने वहाँ पर आपको कहा था स्पेशली इन न्यूमेरिकल्स यू शुड कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में किलोमीटर की जगह क्या आता है मीटर और आर की जगह सेकेंड। सो किलोमीटर पर आवर को पहले किस में कन्वर्ट करो आप, मीटर पर सेकेंड। सो v इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, सो 80 इंटू 5/80 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ओके नाउ 2 9 जा 18, 2 40 80, 14 to 5 200 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। ओके नाउ इनिशियल वेलोसिटी, u 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 5/18। If you solve it, then you will get 150/9 meter per second. Clear? Time we have 5 seconds. So acceleration is equal to v minus u upon t. So value of v 209 u in 5 seconds. Clear? So try to solve it. Here 200/9 minus 150/9. You can take LCM. Clear? Then it will become 200 minus 150 divided by 9 divided by 5. इसको मैंने सोल्व किया तो ये आया, क्लियर। सो सॉरी स्टूडेंट्स, हियर v माइनस u है, तो v की वैल्यू 200/9 नहीं है, 150/9 है। सॉरी 150/9 माइनस 200/9, टेक एलसीएम 150 minus 200 divided by this, clear। okay now minus 50 divided by 9 into 5, clear। ये कितना आ जाएगा 45, clear। so it will become minus 10/9 meter per second square। इसमें सबसे यहाँ पर आपको सबसे अलग क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन। सॉरी, नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है, ए नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीजेस, क्लियर। और हो यही रहा है ना, स्पीड यो वेलोसिटी 80 टू कितना जा रहा है 60 जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आनी चाहिए नेगेटिव। इसका मीनिंग आपने इस केस में क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई की होगी, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2 डेफिनेशंस आर विद अस। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, आप यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म का मीनिंग मैंने आपको बता रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, हम ये पढ़ चुके हैं, क्लियर।
एक्सेलरेशन यदि मैं यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूं तो ये रेशो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इसका मीनिंग है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, तब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, इनकी रेशो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए। इसका मीनिंग है जो चेंज इन वेलोसिटी है इसकी वैल्यू अनइक्वल अमाउंट से चेंज होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई विल क्लियर यू, आई होप यू हैव नोटेड डाउन इट। Students, one thing I want to make clear you about the definitions in the physics. कभी भी डेफिनेशन को आप सीधा याद मत किया करो, केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यू शुड डेवलप द डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी बाय योरसेल्फ। देखो, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्लियर? सो पहला जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग हुआ इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। इनकी रेशो हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो जितना चेंज वेलोसिटी में आया उतना ही चेंज किस में आना चाहिए, टाइम में। क्लियर? सो द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट changes its velocity in equal intervals of time। आपको बिल्कुल मैं क्लियर बता रहा हूँ एक चीज़, जैसे आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ है आपके पास A B C D, मैंने 4 पॉइंट्स आई हैव ड्रॉन हियर। क्लियर? यहाँ पर मैं वेलोसिटी आपको कह रहा हूँ कि सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? तो मैं कहता हूँ कि अगले 1 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। अगले 1 सेकंड में स्पीड कितनी हो गई, ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो इन इक्वल टाइम जो वेलोसिटी का चेंज है वो भी क्या है, सेम है। टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 सेकंड का है, और वेलोसिटी में कितना है, 10 का है। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर का। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म। क्लियर? Students, one definition I will leave for you, that what is the meaning of non-uniform acceleration. You have to develop by yourself. Clear? So students, it is all about your concept regarding acceleration. One more thing students, जब भी आप 9th में कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि हम CBSE सोल्व करें या NTSE या ओलंपियाड। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ आप लोगों को, चाहे वो कोई भी कॉन्सेप्ट है या न्यूमेरिकल है, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर अपनी ग्रिप बनानी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स इन ऑल मैनर। आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू CBSE एज वेल एज फॉर हायर एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड और NTSE, एंड आई विल राइट ऑन दैट क्वेश्चन HOTS, HOTS क्वेश्चन। क्लियर? सो whenever I will give the assignment, it will include 2 type of questions, one simple CBSE type question and second for Olympiad or NTSE, and on that HOTS will be displayed to you. Clear? So students, I hope that it is sufficient for the today's and you have fully understood this. So have a nice day and thank you.